Okay, students, today the thing which we are going to discuss in the today's class, that is report writing, and this is one of the questions in your board papers which will be included, and that maybe or might be containing 8 marks. Right now, the aim of teaching or giving this lecture is to guide you people about the difference between letter writing, application writing, and report writing. In the exam, when you attempt your papers on this particular question, that movement, the examiner who will be checking your paper or marking your paper, he will be just observing one thing, whether you are able to differentiate between letter writing and report writing. So let me guide you people, what is the difference between a report writing and an application or letter writing. Next slide. First of all, you need to know about report writing. If you talk about application writing or letter writing, that is something which you are writing about some particular purpose, and that is from your side. But right now, when you talk about report writing, so I would like to read it out what this piece of art or piece of writing is. A report writing is an account prepared on a given subject which is meant to transfer information from one hand to another hand. Reports are usually given or called for an ongoing happening, situation, proposal, or an idea. Now, observing the definition, one thing is quite clear, that report writing is a thing which will be written for some officer, or the one who is ordinate and you are subordinate. For example, if you take the example of education minister, so will not be, he has authority to visit, but if he or she is asking for report regarding something, so the subordinate, secretaries are there, different controllers are there who will go and make a report about some particular situation. So what I want to say, reports are written to provide information from one hand to another hand, especially for somebody very busy, he or she is not having any idea about some particular situation, so the subordinate will go and collect information about that particular situation. Or you may say some news reporter has this authority, just go and visit some particular area and submit the report about something. Next slide, please. How is the information collected? The information is collected through investigation, examined through analysis, and arranged systematically with a view to conveying a writer's certain conclusion, to the other hand, with his remarks and criticism, or without it, depending upon the nature and scope of the matter. Respectable students, first of all, one thing you need to keep in your mind. It is clearly written on your paper that you are asked for short formal reports. If you talk about lengthy reports, so they can be of hundreds or thousands of pages. It may have, interviews, documents, interviews, questionnaire, different types of things can be included. But when you talk about information in your examination, so you will be quite, satisfied with one thing, that you were not in trouble to collect information about a given topic. Information will be already given to you people. For example, 3 to 4 points will be provided, and you will be asked to make a report regarding the given points. Your report must be containing the given points mentioned in your paper or given into your paper. So it means you will not be in trouble to collect the ideas from your own side. Next. What type of language is to be used? Respectable student, this is a type of formal letter. There are two types of letter, informal and formal. Informal letter has got a very, vast variety. So this is one of its, forms. If you talk about language, the language implied for report writing should be comprised of the words proper, appropriate, and the most suitable. Sentences must be short,
meaningful and easily understandable. Sentimentalism or emotionalism never finds its way into report writing. Same is the case with the letter writing. If you talk about language, because this is being submitted to some very, I must say, busy and a prestigious personality who is ordinate or boss. So the language should be very appropriate. You must be very careful in the selection of your diction or words. Here, you need not become emotional or angry about something because you are no one. Whatever is present or whatever is the fact, you need to bring and you are supposed to put up on the table of that particular ordinate or I must say officer. What is the purpose of report writing? Why do we write reports? If you talk about application writing, so there are different purposes. If you would like to get your works done, so that particular movement, you need to write down application or writer or about different topics. But here, topic or issue will be given to you. What is the purpose? The purpose of report writing is to inform someone about a particular subject. Reports are made up of facts and arguments on a specific subject. For example, if I am the principal of some institution, I'm very busy, so I will ask the vice principal just to go and make a report of carnival which was held or arranged or organized in the college. So this vice principal will go and collect the facts which were present that particular moment. So it means you are supposed to write down report on some given topic. G. Important principles of short formal report. Now you are coming towards very important thing. This is basically which you need to understand. If you do not have knowledge about this, so it will be quite difficult for you people to write down or sketch out a report. Very first thing, we have to act upon the following principles to write a short formal report. The very first thing which is mentioned over here, that is title. That is title. What is that? This part includes the following. Number one, the title of the report. As you know, when you write down an application, that moment you write down the subject. So what I want to say, this is basically the subject of your report. Same like your letter. Number two, the name of the person or organization that the report has been written for. Then you have to mention the name of that person. For example, to the principal, XYZ College, ABC City, like that. Now, the name of, single of, name of the person or organization who wrote the report. Now, you are writing to somebody. आप लिख रहे हैं किसी को जिसके लिए लिखी जा रही है. पहले तो to the and other one who is writing from XYZ news reporter. तो जो लिखने वाला है वो from करके अपना भी बताएगा. And the date of the report. फिर आपने डेट भी लिखनी रिपोर्ट की. बाज लोग इसको एंड पे लिखते हैं, बाज लोग इसको टॉप लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, बाज लोग इसको टॉप राइट पे लिखते हैं. तो मैं सारा आपको बताऊंगा. बेसिकली आपको अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि रिपोर्ट राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग हो, हम चलते हैं मॉडर्न मेथड और ब्लॉक पैटर्न पे चलते हैं जिसमें हर चीज लाइन के साथ टच करके चलानी पड़ती है हमें. सो यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड लाइक दैट. आगे चलिएगा. सेकंड, इंट्रोडक्शन, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस. दूसरा जो प्रिंसिपल है जिसको आप माइंड में रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज दिस पार्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. नंबर वन, व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट. रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं आप? देखिए, पहली बात बेटे, इसको टाइटल दिया जाता है इंट्रोडक्शन में. अगर मैं आपको थोड़ी सी बात करूं न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल के, ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बुक में, किसी भी ऐसे के अंदर या बेसिकली न्यूज़पेपर में तो होता ही ऐसे है कि जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है इसको कहते हैं लीड. व्हाट डू वी कॉल इट? लीड. दिस इज अ, आई मस्ट से, आर्टिकल विद इन आर्टिकल. यानी जो 100 लाइनें नीचे लिखी हैं, इन 6 लाइनों में उन 100 लाइनों का तस्करा पहले से हो चुका है कि शॉर्टली आप बता रहे होते हैं कि ये क्या क्या है. तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी बेटे, व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सो व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट, आप पहले बताएंगे रिपोर्ट लिख क्यों रहा हूं. मैं इंशाल्लाह रिपोर्ट आने वाली रिपोर्ट में इसका तस्करा करूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे, व्हाई इट इज बीइंग रिटन. भाई क्या लिखा जा रहा है, वजह क्या है, रीजन क्या है इस रिपोर्ट का. तीसरा, who it is being written for. जैसे मैंने बताया किसके लिए लिखी, किसके कहने पे बनाई जा रही है. And in short, it is the introduction of your report. अगर मैं मुख्तसर करके कहूँ बेटे, तो आप इसको कह सकते हैं, this is the introduction or lead of your report. मुख्तसर हम आप बता रहे हैं कि मैं किस लिए रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ, इसमें क्या क्या बात होगी, किसके कहने पर, और मैं क्यों बना रहा हूँ. This part of report is report includes or sets the tone for the formal report.
It provides the reader with required information so that the balance of the report can be understood in the correct context. This is also where any background information relating to your report are included. Your analysis or theory is also included in the introduction. One thing you have to keep in your mind, Bide, this is a report within report. आप मुख्तसरन ये बताएंगे कि रिपोर्ट के अंदर चल क्या रहा है, मैं क्यों लिखने जा रहा हूँ. यानी आप नीचे अगर 50 लाइनें लिख रहे हैं तो 3-4 लाइनों में आप ये बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट किसके कहने पर क्यों लिखी जा रही है, आप क्यों लिख रहे हैं, इसका मौजू क्या है, किसने आपको कहा है. ठीक है, उसके बाद आप उसको एलाबोरेट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next, just like your letter, application, essay, body, I mean that is the main part of your report. Just as you have been writing your applications, letters, essays, तो body वो जगह है जहाँ पर basically आप समझते हैं कि main discussion जगह लेती है. अब देख लीजिए, this part includes the following: surveys. अगर आप lengthy report लिखें तो surveys भी करना पड़ते हैं. Interviews, documents read, observations, questionnaires. लेकिन बेटे मैंने आपको पहले बताया, you are asked to write down a short formal report. तो 8 से 10 नंबर की रिपोर्ट 1 पेजर होती है, और इसमें आपने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि here the quantity is not required, quality is required and the pattern will be observed. सबसे बड़ी चीज जो आपकी चेक की जाएगी वो होगा पैटर्न. ये देखा जाएगा कि एप्लीकेशन और रिपोर्ट में कितना डिफरेंशिएट करके आप दिखा चुके हैं. ठीक है बेटे, तो इसमें क्या है, क्योंकि आप शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट्स तो 4 या 5 आपको खुद एग्जामिनर ने दे दिए, कह रहा भाई ये पॉइंट्स है, इसी से सब कुछ बनाकर दिखाओ. अब आप क्या कहते हैं, दिस पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज एक्चुअली मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. This is where you will elaborate on what your introduction has stated and provide all the statistics, research or supporting information to back up your findings which you reported in the introduction. This should be in depth and provide all the information required to ensure the reader thoroughly understands the message the report is conveying. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है, उसके साथ आपको 4-5 पॉइंट दिए गए. इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यू विल बी जनरेटिंग और मेकिंग योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन भी आप ही बनाएंगे, टाइटल यानी इसका सब्जेक्ट भी आप ही बनाएंगे, और जो इंट्रोडक्शन सबसे बड़ी चीज है, मेन बॉडी की तरफ जब आप आ रहे होंगे, यानी जो 4-5 पॉइंट एग्जामिनर ने आपको दिए हैं, ऐसा ना हो कि आपने जो इंट्रोडक्शन बनाया वो और मेन बॉडी के जो पॉइंट्स है वो सारे अलग होना शुरू हो जाए. अगर बातें दो मुख्तलिफ हो गई तो इसको भी एक पुअर जनरेटेड और ऑर्गेनाइज रिपोर्ट समझा जाएगा. तो इसके अंदर एक तसलसल, एक कनेक्शन लाजमी होना चाहिए. आगे चलिएगा. अच्छा जी, द इंफॉर्मेशन कैन बी इंसर्टेड इन द फॉलोइंग वेज. अब बेटे मैं आपको बता देता हूं, आपने प्रिंसिपल्स जो खास थी वो मैंने आपको बता दी. नाउ यू आर कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज ऑफ योर रिपोर्ट राइटिंग, आई मीन शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट. कि भाई मैं इंफॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं कि सर इसको लगाएं कैसे, मुझे क्या क्या इख्तियारात मिल सकते हैं कि मैं इसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करूं. तो पहली बात बेटे मैं कहता हूं, दिस द इंफॉर्मेशन इज बेस्ट सेट आउट इन द सीरीज ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ्स. अगर मैं आपको आपका स्पेसिमेन शो करूं जो बोर्ड ने, फेडरल बोर्ड ने खुद बना के एक आपके मॉडल पेपर में लगाई है, तो उसमें क्या करते हैं, वो शॉर्ट पैराग्राफ में 4 के 4 पॉइंट्स लिखते हैं. चलो अगर कोई कहता है सर इसके अलावा, मैं कहता हूं ऑफन इट इज हेल्पफुल टू इफ ईच पैराग्राफ इज गिवन अ क्लियर हेडिंग टू अट्रैक्ट द रीडर्स. मेरे हिसाब से अगर मैं पसंद करूं यार, आपको कोई टिप दूं या सजेशन करूं या सजेस्ट दूं, तो मैं कहूंगा बेटे जो पॉइंट एग्जामिनर ने 4 दिए, यू मस्ट हैव अ क्लियर हेडिंग फॉर दैट. उसको एक हेडिंग दे, उसको एक लाइन में एलाबोरेट करें, ज्यादा डेट, क्योंकि आपने इसको 1 पेजर रखना है बस. आप कहते हैं सर ये भी मुझे मुश्किल लगता है, इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम्स कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग यू रिमेन कंसिस्टेंट. लाइक अगर आपको लगता है 4-5 पॉइंट है, आप हेडिंग भी देना नहीं चाह रहे, पैराग्राफ भी बनाना नहीं चाह रहे, तो आपके पास नंबरिंग सिस्टम है, 1 2 3 कर लीजिए, ABCD कर लीजिए, बुलेट सिस्टम होता है, रोमन काउंटिंग हो सकती है, आप डॉट्स लगा सकते हैं, कंप्यूटर में लिखने पर तो और बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में तो आपने बाय हैंड इसको लिखना होगा. लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, सर डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू और रेकमेंड हेडिंग प्रोसीजर, कि आप हेडिंग लिखिए, हर पॉइंट को एक हेडिंग देकर आगे बढ़िए. आगे चले बेटे. अच्छा, कंक्लूजन, जस्ट लाइक योर एसे, जस्ट लाइक योर एप्लीकेशन में तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, लेकिन कंक्लूजन डेफिनेटली आप एसेज में देखते हैं जो आप लिखते हैं और लिखेंगे भी. इसमें क्या है, यू नो वेरी वेल, ये कोई नई चीज नहीं है. योर कंक्लूजन विल समराइज व्हाट यू फाउंड, द कंक्लूजन यू हैव रीच्ड एंड इंफॉर्मेशन यू हैव presented to the readers based on the facts. Your conclusion should provide a thorough analysis
और एंड सिनॉप्सिस ऑफ योर वर्क। देखिए बेटे, पॉइंट्स एग्जामिनर के, क्वेश्चन एग्जामिनर का, इंट्रोडक्शन आपने बनाया, सब्जेक्ट आपने लिखा, इंट्रोडक्शन आपने लिखा, मेन बॉडी में पॉइंट्स थे, एलाबोरेट आपने किया। अब जो कुछ आपने लिखा है उसकी कंक्लूजन भी, इख्तिताम भी आप ही करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने विजिट किया, आपको एक XYZ न्यूज रिपोर्टर ने फेडरल बोर्ड या बलूचिस्तान बोर्ड में होने वाले जो पेपर्स थे किसी भी हॉल का विजिट किया, एंड राइट आफ्टर दैट ही केम टू द कंक्लूजन। अब वो क्या लिखता है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बाय विजिटिंग सर्टेन डिफरेंट हॉल्स, एग्जामिनेशन हॉल्स इन द सिटी, I came to the conclusion that the situation was really very pathetic. The complete system needs to be reformed and the solid measures are to be taken. तो मैंने क्या किया, ऊपर से जो बातें की उसके नीचे जो एंड बनाया वो भी ये बनाया। आगे अब बेटे, एप्लीकेशन हो या लेटर हो, you need to keep in your mind that आपने कभी किसी लेटर या आपने किसी एप्लीकेशन में रिकमेंडेशंस कभी नहीं दी। विजिट किसने किया, आपने। रिपोर्ट बना के XYZ न्यूज रिपोर्टर बनाकर ला रहा है, तो भाई जो खामियां या जो चीजें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उसका हल भी आप बताएं कि क्या हो सकता है। या अगर ऑफिसर, मिनिस्टर, आप कह सकते हैं चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप उन तक एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहे हैं, तो उसके कोई सॉलिड मेजर्स भी आपको ही बताने होंगे कि भाई ये खामियां, दीज आर द डीमेरिट्स एंड दीज मेरिट्स आर सपोज्ड टू बी अप्लाइड, कि ये मेजर्स लेने चाहिए। तो बेटा रिकमेंडेशन में क्या होता है, द रिकमेंडेशन आउटलाइंस व्हाट यू बिलीव नीड्स टू अकर मस्ट बी बेस्ड ऑन योर रिसर्च। भाई जो कुछ ऊपर आप बताते रहे हैं, खराबियां बताइए, जो भी था उसी के हिसाब से आप रिकमेंडेशंस दीजिए कि भाई पॉइंट 1 कैमरे इंसर्ट होने चाहिए, पॉइंट 2 the helpers should not be allowed in the examination hall, the cheating material should be checked, there should be strict check and balance। मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं, your findings and your conclusion, your recommendation needs to be in depth enough to provide the readers with enough information to be able to evaluate your recommendation and come to a conclusion of their own। भाई लिखने वाले आप हैं, अब आप पूछेंगे कि सर इसमें मैं रिकमेंडेशंस कितनी दूं। अगर आपको उसने 4 पॉइंट दिए तो 3-4 से ज्यादा आगे ना जाइएगा। ये नहीं हो कि आप 15-20 रिकमेंडेशंस देने, कौन सी आपकी रिपोर्ट को कोई एक्चुअली देखना चाह रहा है। दिस इज जैसे मॉक टेस्ट है आपका, चेक किया जा रहा है कि अगर इसको रिपोर्ट दी जाए तो इसके साथ क्या बर्ताव करता है। तो आपको बता दिया गया कि द रिकमेंडेशंस शुड नॉट बी टू मच लेंथी। हाँ, अगर आप बहुत बड़ी रिपोर्ट बना रहे हैं फिर तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। आगे चलिए बेटे, अब आ जाती है बेटे एक स्पेसिमेन है मेरे पास कि रिपोर्ट लिखनी कैसे है। मैं आपको कुछ एक रिपोर्ट के थ्रू समझा देता हूँ। रिपोर्ट आई, राइट डाउन अ रिपोर्ट ऑफ द बेगर्स एंड बेगिंग इन मेन बाजार्स ऑफ योर सिटी फ्रॉम अ न्यूज़पेपर स्टाफ रिपोर्टर टू द डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। अब आपने क्या किया भाई, एक न्यूज़पेपर, एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट बना रहा है इस्लामाबाद में, गदागर जो बेकारी हैं, वो जो अहम शाहराहों पर भीख मांग रहे होते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट, या तो ये खुद तल उनको बना के देगा कि इस पे एक्शन लिया जाए, या इसको कहा गया आप रिपोर्ट। लेकिन जब न्यूज रिपोर्टर बनाता है तो आपको पता होता है कि उनका काम यही होता है कि रिपोर्ट्स बनाएं और कंसर्न डिपार्टमेंट तक भेजें ताकि उनको पता चले कि भाई आप इसके रखवाले, आप इसके जिम्मेदार हैं, यू आर सपोज्ड टू टेक सम सॉलिड मेजर। फॉर एग्जांपल, अपनी रिपोर्ट का आगाज किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले बेटे डेट, ये जो मार्जिन है ना ये सेट होना चाहिए। आप कहते हैं सर अगर हम ये टू और फ्रॉम वगैरह ना लिखें ये लाइन से टच हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कर ले तो कोई इशू नहीं है। देखिए बेटे, 2 रास्ते हैं टू से शुरू करने के। टू, सामने वाली लाइन जैसे एप्लीकेशन में होती, कुछ नहीं लिखते ना लिखें, द डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया सिटी या इलाके का नाम तो आप भी ABCD XYZ करके लिखेंगे। दूसरी बात, टू को अगर ज्यादा अच्छा लिखने का तरीका जो आपके मॉडल पेपर्स या फेडरल बोर्ड वाले खुद बताते हैं वो ये है कि टू को बिल्कुल इसके सामने बजाय कोमे के कॉलन लगा के एग्जैक्ट इसके सामने लिखना है, द डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कोई अगर ऐसा कर दे इट्स नॉट रॉन्ग बट दिस इज अप्रोप्रिएट बेटर देन दैट। दूसरी बात, फ्रॉम, वही बात हुई, लाइन छोड़ दी आपने बेटे, XYZ न्यूज रिपोर्टर और स्टाफ रिपोर्टर, द मुस्लिम्स न्यूज़पेपर का नाम नहीं है तो आप भी मेंशन नहीं करेंगे, है तो आप कर दीजिएगा। और वही बात फ्रॉम के सामने ये वाला तरीका, XYZ स्टाफ रिपोर्टर द मुस्लिम। ये तो बेटा आपका कौन सा हिस्सा चल रहा है, टाइटल। आगे चलिएगा। अच्छा, बेगर्स एंड बेगिंग इन द मेन बाजार्स ऑफ सिटी इस्लामाबाद। देखिएगा सब्जेक्ट क्या बनाया बेटे मैंने, सब्जेक्ट नहीं दिया होगा आपको, ये टाइटल है आपकी रिपोर्ट का। इंट्रोडक्शन चेक कीजिएगा, इंट्रोडक्शन, a task was assigned by the Director General Social Welfare Department of Government of Pakistan to report the beggars
found begging in the main bazaars of city. The assignment was designed to categorize the beggars and to suggest how the evil of begging can be eliminated. मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन क्या है, आप हेडिंग दे के लिख सकते हैं रिपोर्ट किसने लिखी किसके कहने पर, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं अगर इन्होंने आपको नहीं कहा द रिपोर्ट इज बीइंग मेड और प्रिपेयर्ड टू हाईलाइट द इविल ऑफ बेगिंग एंड about the beggars in the main bazaars or markets of the city. तो ये इस तरह किया जा सकता है. अब बेटे जब आप रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन के बाद जो अगली चीज थी वो थी मेन बॉडी. आप बॉडी का टाइटल देके क्या करेंगे? The situation regarding begging in the main bazaar is as follows. अब आप अपने पॉइंट्स पे आते हैं. There are the main categories of beggars in this overcrowded market. ये वो पॉइंट्स है जो एग्जामिनर ने दिए होंगे आप, जिसको थोड़ा सा हाईलाइट किया. सबसे पहले एबल बॉडीड. They are of the age of 30 onwards found begging in the main bazaars on the name of Allah. They sometimes recite various verses of the Holy Quran. They also sing devotional songs. Nothing. Many give alms. Alms खैरात चंदा वगैरह को कहते हैं. Instead of asking these beggars to work. पहली बात, भाई एग्जामिनर ने ये नहीं दिया आपको. He just provided you with a heading. आपको ये heading दिए, इसको खुद elaborate करना है. दूसरी, invalid male and female beggars. These are the beggars who have mostly broken their arms or legs themselves, or their or their keepers have done this. ज़ाहिर बात एक माफिया. They crawl or sit on the roadsides with a piece of cloth stretched before them. Passers-by give them alms liberally. और गुजरने वाले उनको बस खैरात दे रहे होते हैं. तीसरी है child beggars. There are thousands of small boys and girls begging. From car drivers, motorcyclists and pedestrians, they go on begging shamelessly. तो क्या किया, मैंने एग्जामिनर के दिए हुए पॉइंट्स को वन बाय वन आपके सामने रखा. अब आ रही कंक्लूजन पे कि भाई जो बातें मैंने की अब मैं उसको इख्तिताम पे कैसे लेकर जाता हूँ. मैं कहता हूँ from my observation of the beggars and begging, I conclude that begging is an art of befooling common people. समझे कि जो पॉइंट्स आपने पीछे लिखे उसी के हिसाब से आपने अपनी एंडिंग को उनके सामने रखा. आखिर में आगे क्योंकि आपने ही सब देखा है, आप ही रिपोर्ट बना रहे हैं, अब आप रिकमेंड करेंगे कि क्या करूं, सजेशन और रिकमेंडेशन, जो भी हेडिंग देना चाहे आप दोनों में से एक, दोनों भी देने क्वेश्चन. आई रिकमेंड दैट द रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर मस्ट स्टार्ट अ कैंपेन अगेंस्ट बेगिंग एंड एक्सप्लेन हाउ बेगर्स कैन वर्क प्रॉफिटेबली इन डिफरेंट फील्ड्स. Disabled beggars should be lodged in special institutions where some kind of work can be given to them. Yours sincerely, XYZ. So this was all about a short formal report. I have provided you people with just one specimen, one example, or one solved report. Inshallah, I will be sharing different short reports with you people, and tomorrow we'll be talking about that, and a short test will be conducted in the coming class about that. So if you have any queries, any question, you can raise. Thank you for today, and that's enough. Thank you. ठीक है बेटे, ये मैं सारे आपके साथ शेयर कर दूंगा और नोट्स तो ज़ाहिर बात है